Okay, so good morning, students. Let's start our civics class today. And today we shall start our civics chapter, that is chapter number 6, political parties. Is that clear? So please take out page number. Please take out page number 73, 72, 73. Please take out page number 72, 73, chapter number 6 in civics books. Okay, so let's start. Now beta, the chapter is, you all have read that chapter is about political parties. So before we start the chapter, we must understand what is meant by the term political parties. Is that clear? So please write down your first question. What is meant by the term political parties? What is meant by the term political parties? Please underline the answer also in your textbooks. The political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. ठीक है बच्चों, इसके नाम से क्लियर हो रहा है. The group of people, those who come together and contest the elections and hold the power in the government. That is known as a political party. ठीक है जी. Suppose there are 100 group of people and those 100 group of people go in the public and contest elections and win the elections. And after winning the elections, those 100 people will make the government also. They will hold power. And they will make the government also. So the group of people that do all these things that group is known as political party. Is that clear बच्चों? देखो इसके नाम में है सारा कुछ. A group of people. तो जो ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे मिलकर कम टुगेदर, इकट्ठे मिलकर इलेक्शंस को कंटेस्ट करता है. ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल जो इकट्ठे मिलकर इलेक्शंस लड़ता है, उसके बाद इलेक्शंस को जीतता है, पावर गेन करता है और गवर्नमेंट फॉर्मेशन करता है. ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलिटिकल पार्टी. इज दैट क्लियर? सपोज फॉर एग्जांपल, यहां पे एग्जांपल दे सकते हो आप. कांग्रेस, बीजेपी, ठीक है जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेक्स्ट तृणमूल कांग्रेस, मैनी मोर, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है जी, आम आदमी पार्टी, ऑल दीज एटसेट्रा. ठीक है जी, ये सारे क्या? ऑल ऑफ दीज आर द पॉलिटिकल पार्टीज. दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ पीपल, दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ पीपल, दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ पीपल, दिस इज ऑल्सो. सो ऑल ऑफ दीज ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर, ठीक है, कम टुगेदर, contest elections, win the elections, hold the power, and then form the government. And that's why all of these groups of people are known as political parties. Is that clear, bachcho? So this is known as a political party. Now, this was the meaning of political party. Now the next question arises, that is your first topic in the textbook. Why do we need political parties? This is your first topic in the textbook. So please underline the question. Why do we need political parties? हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों? क्योंकि हमें पहले ये तो पता चल गया कि पॉलिटिकल पार्टी है क्या, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो इलेक्शन लड़ता है, पावर गेन करता है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन करता है, तो हमें इस ग्रुप ऑफ पीपल की जिसको हम लोग पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, इस ग्रुप ऑफ पीपल की जरूरत क्या है? व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी? हमें जरूरत क्या है पॉलिटिकल पार्टी की? ये सब अब हम चेक करें. ठीक है, सो प्लीज अंडरलाइन द क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? चलो, why do we need political parties? Okay, देखो बच्चों, very simple question. This is not a very tough question, very simple question. Why do we need political parties? Okay, सबसे पहला, why do we need political party? First point, to contest elections. अब देखो ना, अगर हमारा कंट्री क्या है? इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. और व्हाई इंडिया इज डेमोक्रेसी? बिकॉज इन इंडिया इलेक्शंस टेक प्लेस आफ्टर एवरी 5 years. हमारे देश में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि इलेक्शंस को लड़ता कौन है? दीज पॉलिटिकल पार्टीज. अगर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी ही नहीं तो फिर इलेक्शन कौन लड़ेगा? और अगर इलेक्शन नहीं लड़ेगा कोई, तो फिर इंडिया डेमोक्रेसी कैसे हुआ? Is that clear? So that's why to contest elections we definitely need political parties, because if there are political parties, then the elections will take place, and if elections will take place, then the government will form, and if government will form, then India will be a democracy. Is that clear? So that's why first point is very important. To contest elections we need a political party. Next, number two, to form government. Next point is connected with this point.
अगर इलेक्शंस हो गए, द वन पार्टी हैज गॉट द मेजॉरिटी एंड इट हैज वन द इलेक्शंस. सो व्हेन दैट पॉलिटिकल पार्टी हैज गॉट द मेजॉरिटी एंड इट हैज वन द इलेक्शंस, नेक्स्ट सेकंड स्टेप विल बी द विनर पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट. तो अगर पॉलिटिकल पार्टी होगी तभी इलेक्शंस होंगे, और अब जब इलेक्शंस होंगे तो जीतने वाली पार्टी क्या बनाएगी? गवर्नमेंट बनाएगी. अगर सपोज पॉलिटिकल पार्टीज ही ना होती तो फिर क्या होता? फिर इलेक्शंस भी ना हो पाते, और अगर इलेक्शंस ना हो पाते तो कोई जीत ना पाता, और अगर कोई जीत ना पाता तो फिर क्या गवर्नमेंट बन पाती? कभी भी ना बन पाती. समझ लगी बात? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए. आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो आपके कंट्री में इलेक्शंस होंगे. आपके कंट्री में इलेक्शंस होंगे तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको जीतेगी भी, और जब जीत जाएगी तो जीतने वाली पार्टी आपकी क्या फॉर्म करेगी? हमेशा क्या बनाएगी? वो गवर्नमेंट बनाएगी. तो आपके कंट्री में सरकार तभी बन पाएगी, गवर्नमेंट ओनली विल फॉर्म इफ यू हैव पॉलिटिकल पार्टीज. इज दैट क्लियर? सो दिस इज सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? बिकॉज वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट. Is that clear? This is the second point. Number three, to run the country. This point is also again connected with the second point. सरकार बन गई, ठीक है. अब सरकार, सबसे पहले सरकार का मेन काम क्या? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट? टू रन द कंट्री, टू रन द फंक्शंस ऑफ द कंट्री, टू रन द पॉलिसीज इन द कंट्री. तो दैट्स व्हाई अगर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो वो इलेक्शंस लड़ेंगी तो गवर्नमेंट बनाएंगी, और जब गवर्नमेंट बन जाएगी तो वो गवर्नमेंट कंट्री को रन करने का काम करेगी, कंट्री को चलाने का काम करेगी. अगर गवर्नमेंट ही नहीं हो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होंगी तो इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे तो गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी, और अगर गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी तो देश कौन रन करेगा? देश को कौन चलाएगा? So that's why to run the country we need political parties. Is that clear? This is third very important point. Next, number 4. Number 4 लिखो बच्चों. Yes, the political parties form the opposition also. ये लिखो, फोर्थ पॉइंट, ऑपोजिशन ऑल्सो. जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो हारने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो ऑपोजिशन फॉर्म करती हैं. ऑपोजिशन, व्हाट इज ऑपोजिशन? आपने सुना भी होगा शायद ये वर्ड. ये व्हाट इज ऑपोजिशन? ऑपोजिशन होता है बच्चों जो पार्टी कुछ वोट से हार जाती है इलेक्शंस. ऐसी हारने वाली पार्टी कहां बैठती है? ऑपोजिशन. देखो, जो जीतने वाली पार्टी है, द विनर पार्टी, मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं. विनर पार्टी क्या करती है? फॉर्म्स द गवर्नमेंट. विनर पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट. और दूसरा लूजिंग पार्टी, दूसरी होती है लूजिंग पार्टी. तो जो लूजिंग पार्टी है वो क्या बनाती है बच्चों? ऑपोजिशन. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आज के टाइम से देता हूं. आज के टाइम में इलेक्शंस जब हुए थे, जब 2019 में इलेक्शंस हुए थे, तो जीतने वाली पार्टी कौन सी थी? बीजेपी. तो बीजेपी जब इलेक्शन जीत गई, बीजेपी जब विनर पार्टी बन गई, तो बीजेपी ने क्या बनाई बच्चों? गवर्नमेंट बनाई. ठीक है, बिकॉज इट हैज वन द इलेक्शंस. और कांग्रेस कुछ वोट, काफी सारे वोट से इलेक्शन हार गई, मतलब कि कांग्रेस वाज द लूजिंग पार्टी. तो कांग्रेस कहां पे जाके बैठ गई? कांग्रेस क्या बन गई? ऑपोजिशन. तो मतलब कि विनर पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड द लूजर पार्टी फॉर्म्स द ऑपोजिशन. तो दैट्स व्हाई द पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो फॉर्म द ऑपोजिशन इन द कंट्री. और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपोजिशन? टू चेक द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. अगर ऑपोजिशन नहीं होगी, अगर ऑपोजिशन में कोई पार्टी नहीं होगी, तो गवर्नमेंट जो है जैसे मर्जी कुछ भी अपने मन में आएगा करती जाएगी. लेकिन इफ देयर विल बी ऑपोजिशन देन इट विल अपोज द गवर्नमेंट. इट विल अपोज द रॉन्ग फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार ने कहीं भी गलती की है, उसको एक्सपोज करने का, उसको अपोज करने का काम करेगी आपकी ऑपोजिशन पार्टी. तो जिससे क्या होता है? गवर्नमेंट को डर होता है ऑपोजिशन पार्टी कि अगर हमने कुछ भी गलत किया, अगर हमने कुछ भी गलत स्टेप उठाया, तो ऑपोजिशन पार्टीज हमारा क्रिटिसाइज करेंगी पूरे देश में. तो दैट्स व्हाई द विनर पार्टी हैज द फियर ऑफ दिस ऑपोजिशन पार्टीज. तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो फॉर्म द ऑपोजिशन इन द कंट्री. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 5. नंबर 5 देखो बच्चों. इसमें नंबर 5 में लिखो, नहीं इसमें ऐसे लिखो, हाँ, मेक्स अ राइट ऑफ.
makes a direct contact with the people. ये makes a direct contact with the people. जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं दैट पॉलिटिकल पार्टीज मेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीपल, लोगों के बीच जा जाके उनकी प्रॉब्लम्स को सुनती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को पूछती हैं. what are the problems they are facing, what are their needs, what do they want from the government. So that's why they make a direct contact with the people, and in this way they come to know, these political parties come to know about the grievances, about the needs of the people, and when they come to know about the needs of the people, they send their grievances, their needs directly to the government. So that's why these political parties makes a direct contact with the people and send their grievances and needs directly to the government. इससे क्या होता है, जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स, उनकी जो नीड्स हैं, जरूरतें हैं, जो सरकार तक नहीं पहुंच पाती, पॉलिटिकल पार्टीज उनसे उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी नीड्स को पूछकर सीधे गवर्नमेंट तक पहुंचाती है. जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट तक उनकी प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम पहुंच जाती है, और फिर गवर्नमेंट उस तरह की पॉलिसीज बनाकर लोगों की ग्रीवियंसेस को और लोगों की नीड्स को पूरा करने का काम करती है. अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होंगी, सपोज पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा, लोगों तक सरकार की सीधी पहुंच नहीं बन पाएगी, और अगर सीधी पहुंच नहीं बन पाएगी, फिर क्या होगा, लोगों की ग्रीवेंसेस, लोगों की प्रॉब्लम्स और लोगों की जरूरतों का सरकार को पता ही नहीं चल पाएगा. और अगर सरकार को इनकी प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं होगा, तो सरकार उन अच्छी पॉलिसीज नहीं बना पाएगी, और अच्छी पॉलिसीज नहीं बना पाएगी, उससे क्या होगा, देश प्रॉपरली नहीं चल पाएगा. तो दैट्स व्हाई वी नीड दिस पॉलिटिकल पार्टीज to make a direct contact with the common people of our country. That's why we need political parties. Is that clear, bachcho? So these were the 5 points that makes it very clear that yes, we need political parties. First of all, the first topic we had discussed, what are political parties. उसमें हमने क्या देखा, it is a group of people, ठीक है, that contest the elections, that win the elections and that make the government. उसके बाद हमने देखा why do we need these political parties. ठीक है जी, ये था हमारा next topic. Now our third topic. Third topic, बच्चों, write down the question. Please write down the question. What are the functions of the political parties? Please write down the question. What are the functions of the political parties? चलो, okay जी, functions. What are the functions of the political parties? सबसे पहले ये जो आपने अभी ये देखिए ना, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, इससे मिलता जुलता आंसर है. देखो फर्स्ट पॉइंट, प्लीज अंडरलाइन योर टेक्स्ट बुक्स आल्सो. फर्स्ट पॉइंट बच्चों वही जो भी हमने डिस्कस किया, दैट वी हैव डिस्कस्ड कंटेस्ट इलेक्शंस. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. yes we know that it was written in the need of the political parties also, and this is also the function of the political parties to contest elections. अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही हैं और जीत रही हैं, और जीतने के बाद गवर्नमेंट को फॉर्म कर रही है, और अगर इलेक्शंस नहीं जीत पा रही हैं तो ऑपोजिशन में जा रही है. इज दैट क्लियर? सो दैट्स व्हाई कंटेस्टिंग इलेक्शंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट वर्क ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. इज दैट क्लियर? नंबर 2, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट नंबर 2, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. प्लीज अंडरलाइन सेकंड पॉइंट, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. अब देखो बच्चों, इसमें क्या, व्हाट इज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. Political parties, before contesting the elections, these political parties make their policies and programs and send their policies and programs to the people through media, with the help of newspapers, with the help of advertisements, with the help of television, news channels, etc. These political parties send their policies and programs to the people. And why do they send their policies and programs to the people? To contest the election and to win the elections. ठीक है, अब क्यों, देखो सपोज मुझे अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोज मैंने बनाई, ठीक है, मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनाकर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो मेरा अल्टीमेट मोटिव क्या है इलेक्शन लड़ने का? आई हैव टू विन द इलेक्शंस. सो टू विन द इलेक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट लेट माई पीपल नो
I must let my people know that what will be my policies and what will be my programs if I win the elections. मैं अगर इलेक्शन जीतने के बाद आपकी भलाई के लिए क्या क्या करूंगा, that is included in these policies and programs. So the second major function of these political parties is to release their policies and programs directly to the people with the help of media, so that the people can get impressed from their policies and programs and they can win the elections. That is the second very important function of these political parties: policies and programs. Is that clear, students? Next, number 3 देखो बच्चों, मेकिंग लॉज। अच्छा, इसके ना नाम से क्लियर हो रहा है व्हाट इज मेंट बाय दैट मेकिंग लॉज, कानून बनाना। सपोज अ पोलिटिकल पार्टी हैज वन द इलेक्शन, ठीक है, सपोज हैज वन द इलेक्शन एंड नाउ आफ्टर विनिंग द इलेक्शन it forms the government. It forms the government. After winning the election, it forms the government. अच्छा, उसने सरकार बनाया। अब now when the government is formed, the major task of the government is to ensure law and order in the country. And to ensure law and order in the country, the government makes several types of laws, ठीक है जी, to ensure law and order in the country, ठीक है ना। देखो, कोई भी गवर्नमेंट, सपोज एनी पॉलिटिकल पार्टी हैज वन द इलेक्शन एंड आफ्टर विनिंग द इलेक्शन इट फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट बनाने के बाद हर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके देश में लॉ एंड ऑर्डर, आपके देश में कानून की स्थिति जो है सही बनी रहे, आपके देश में कहीं पर भी दंगे फसाद मारकाट ऐसा ना शुरू हो जाए, आपकी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, ऑल द गवर्नमेंट्स make several types of laws, and that's why this is also a very important function of a political party after winning the elections, that it makes laws to ensure law and order in the country. Is that clear, students? देश में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हर गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से अलग अलग तरह के लॉज बनाती, अलग अलग तरह के कानून बनाती। नेक्स्ट, नंबर 4, चलो नंबर 4 है बच्चों, फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट्स। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, all the political parties contest the election and try to win the elections, and after winning the elections, they form the government and run the government. So that's why this is also very important function of the government, very important function of the political parties to form and run the government after winning the election. And if they lose the election, they go into the opposition. So that is also very important part of our democracy, the opposition. So whether it wins the elections and forms the government and run the government, or it loses the election and goes to the opposition. Is that clear? So that's why it helps, these political parties help to run the government. Is that clear? To form the government and to run the government. Next, number 5. Number 5 देखो बच्चों, next is your role of opposition. We have already discussed it. ठीक है, opposition क्या है मैंने आपको पहले बता दिया, the losing party in the elections. What is opposition? The losing party in the elections.
इलेक्शंस में जो पार्टी हार जाती है, ठीक है, कुछ वोट से, ऐसी पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपोजिशन। द लूजिंग पार्टी इन द इलेक्शंस इज नोन एज ऑपोजिशन पार्टी, इज नोन एज ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, तो ऑपोजिशन, व्हाट इज नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी? इसके लिए ना क्वेश्चन लिख लो, राइट द क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ऑपोजिशन पार्टी? प्लीज राइट डाउन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ऑपोजिशन पार्टी? What is the role of an opposition party? What is the role of an opposition party in any democracy? What is the role of an opposition party in any democracy? चलो, तो देखो बेटा, what is opposition party? We have already discussed it. The losing party in the elections is known as opposition party. Now question arises कि what is the role of opposition party? ये भी मैंने आपको बता दिया। The role of opposition party is also very important in any democracy. किसी भी लोकतांत्रिक देश में ना opposition party का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है जितना कि विनिंग पार्टी का, जितना के जीतने वाली पार्टी का। देखो opposition party का रोल क्या है? To oppose the wrong decisions, to oppose the wrong decisions of the government. किसी भी सरकार से अगर कोई गलती हो जाती है, उसके गलत डिसीजंस को अपोज करने का काम, उसके गलत डिसीजंस को के विरुद्ध आवाज उठाने का काम, वो काम कौन करेगा? आपकी ऑपोजिशन पार्टी। कि सपोज करो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टेक्स एनी रॉन्ग डिसीजन, तो दैट रॉन्ग डिसीजन विल बी अपोज्ड, विल बी हाईलाइटेड बाय द opposition parties like Congress, like communist parties and all these parties, because their major function is to oppose the wrong decisions of the government. सरकार से अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके wrong decisions को oppose करने का काम आपकी कौन करती है? opposition parties. Next, number two, to highlight the weaknesses, of the गवर्नमेंट, टू हाईलाइट द वीकनेसेस ऑफ द गवर्नमेंट। किसी भी सरकार में अगर कोई कमियां हैं, कोई कमजोरियां हैं, उनको हाईलाइट करने का काम पूरी दुनिया के सामने कौन करती है? आपकी ऑपोजिशन पार्टी। सपोज देयर इज एनी वीकनेस इन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, एनी वीकनेस XYZ, any weakness, so that weakness will never be told by बीजेपी हमेशा उस वीकनेस को छुपाने का काम करेगी, बिकॉज इट इज अ रूलिंग पार्टी। बट उस वीकनेस को उन शॉर्टकमिंग्स को हाईलाइट करने का काम कौन करेगी? द ऑपोजिशन पार्टीज, लाइक कांग्रेस, लाइक सेक्युलर, लाइक तृणमूल कांग्रेस, ठीक है जी, लाइक योर आम आदमी पार्टी एंड ऑल दीज पार्टीज, ठीक है। दोज वीकनेसेस विल बी हाईलाइटेड बाय दीज ऑपोजिशन पार्टीज। And how do they highlight? By going to the media. Suppose there is any weakness in the Narendra Modi government, those weaknesses will be highlighted by the opposition parties in news channels, in advertisements, in newspapers, ठीक है। तो in this way they try to highlight the weaknesses of the government and to show the people that this party is not so much capable of doing work for the people. So remove this government and we will come in the next elections and vote for us and we will contest the election, we will win the election and we will work for you. So this is their major work, to highlight the weaknesses of the government. So that's why opposition party is also very important. अब बच्चे पूछेंगे कि सर इसका फायदा क्या है? सपोज करो गवर्नमेंट की वीकनेसेस को शो भी कर दिया, तो फायदा क्या है? द गवर्नमेंट ऑलवेज हैव द फियर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज। सरकार को हमेशा ऑपोजिशन पार्टीज का डर रहता है कि अगर मैंने कोई गलत काम किया या हमारी सरकार में या हमारे काम में कोई कमी रह गई, कोई वीकनेस रह गई, तो ऑपोजिशन पार्टीज उसका पूरा फायदा उठाएंगी, जनता के सामने हमको एक्सपोज कर देंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑलवेज हैव द फियर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज, बिकॉज दीज ऑपोजिशन पार्टीज कैन हाईलाइट देयर वीकनेसेस इन द पब्लिक। तो दैट्स वाई सरकार कुछ भी अपनी मनमर्जी जैसे तैसे नहीं कर सकती। सरकार को हर काम सही तरीके से सोच समझ के करना पड़ता। अगर वो बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देगी तो उसकी वीकनेसेस को ऑपोजिशन पार्टीज हाईलाइट कर देंगे, जिससे क्या होगा? गवर्नमेंट को अगले इलेक्शंस में बहुत नुकसान होगा। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट्स हैव द फियर ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी डेमोक्रेसी। इज दैट क्लियर बच्चों? ये था आपका सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट, नंबर 3, इसी में ही नंबर 3, द रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। नंबर 3 में क्या आएगा बच्चों?
हाँ, इसमें लिखो मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन, मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करना। व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन? व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन? पब्लिक ओपिनियन क्या होता है बच्चों? द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। लोगों का विचार क्या है? सपोज करो द पीपल हैव गिवन मैंडेट, द पीपल हैव गिवन मेजॉरिटी टू द बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है? दैट मीन्स पब्लिक ओपिनियन इज इन द फेवर ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट, बट द ऑपोजिशन पार्टीज लाइक कांग्रेस एंड ऑल दीज पोलिटिकल पार्टीज will try to mold this public opinion against the government। वो सरकार के खिलाफ लोगों के विचारों को बनाने का काम करते हैं। पब्लिक ओपिनियन मीन्स लोगों के विचार, पब्लिक ओपिनियन। तो सरकार के खिलाफ लोगों के विचारों को बनाने की कोशिश करती है ताकि अगले इलेक्शंस में ये गवर्नमेंट हार जाए और लोग हमको वोट दें और हम इलेक्शन जीत सके। तो दैट्स व्हाई द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इज ऑल्सो टू मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट। पब्लिक ओपिनियन मीन्स लोगों के विचार। तो लोगों के विचार अगर सरकार के खिलाफ हो जाएंगे तो अगले इलेक्शन में सरकार को वोट नहीं देंगे और उससे क्या होगा? दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ऑपोजिशन पार्टीज है, उनको जीतने का मौका मिले। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी टू मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर बच्चों? सो दिस वाज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं बच्चों, वी आर स्टडिंग द फंक्शंस। हमारा मेन टॉपिक क्या चल रहा है? फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो इसमें अभी हमने देखा आपका रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में। ठीक है, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो कि हमारा मेन टॉपिक चल रहा है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे शेप पब्लिक ओपिनियन। ठीक है जी, ये आपका सेम क्वेश्चन ही है 6 पॉइंट। शेप पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को एक शेप देने का काम। एवरी पॉलिटिकल पार्टी, क्या लिखोगे आप इसमें? एवरी पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू गिव शेप टू द पब्लिक ओपिनियन, in the favor, in their own favor, actually in their own favor, try to shape the public opinion in their own favor and ultimately try to win the elections, तो every political party, whether it is Congress, whether it is BJP, whether it is Aam Aadmi Party, any political party, any XYZ political party, always try to give shape to the public opinion and try to amend that public opinion in their own favor, so that in the next election they win the elections. Is that clear? ये हर political party करती का कि पब्लिक ओपिनियन हमारे फेवर में हो जाए, दूसरे के अगेंस्ट हो जाए, ताकि हम लोग इलेक्शन जीत सके और हमारे सामने वाला इलेक्शन हार सके। Is that clear बच्चों? चलो नेक्स्ट, नंबर 7। I think you have written all this। ठीक है, नंबर 7। नंबर 7 इज बच्चों एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। देखो बच्चों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, इसका गवर्नमेंट मशीनरी तक जो होता है इसकी रीच होती है। सपोज बीजेपी इज द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, तो दैट मीन्स द बीजेपी दैट इज द रूलिंग पार्टी, this ruling party has the reach to the government machinery, सरकार की जितने भी रिसोर्सेज हैं, सपोज गवर्नमेंट फंड्स
ठीक है, गवर्नमेंट फंड्स, गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट कार्स, गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर्स, एवरीथिंग, द रूलिंग पार्टी हैज द एक्सेस टू ऑल ऑफ दिस, गवर्नमेंट मशीनरीज, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज, गवर्नमेंट स्कूल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, रूलिंग पार्टी हैज द एक्सेस टू ऑल ऑफ दिस गवर्नमेंट मशीनरीज. तो in this way these political parties has the access to these government machineries, and with the help of these government machineries they try to do welfare schemes, they try to form welfare schemes for the common people. Is that clear? क्योंकि इनकी पहुंच, इन जीतने वाली पॉलिटिकल पार्टी की पहुंच सरकार के सभी गवर्नमेंट मशीनरीज तक है, तो इन गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल करके वो लोगों की हेल्प के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करती है, ताकि पब्लिक ओपिनियन हमारे फेवर में बना रहे और अगले इलेक्शंस में दोबारा से हम इलेक्शन जीत सके. Is that clear? So that's why the political parties uses this government machinery and try to form welfare schemes for the people so that they can win the elections again, and again they can form the government. Is that clear? So this was the 7th point. Next, number 8. Okay, there are 7 points. Okay, 7. This was the 7th point. ठीक है जी. So you have to write 5 points. ठीक है, हमने 7 points डिस्कस किए. What are the functions of the political parties? You have to write any 5 points. Is that clear? चलो. नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, दिस वॉज योर टॉपिक. नेक्स्ट इज बच्चों द नेसेसिटी. सेम पॉइंट, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. इसमें भी वही चीज आ रही है कि जरूरत क्या पॉलिटिकल पार्टीज की, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज होंगी. देखो बेटा, वी विल समराइज दिस टॉपिक. If there will be political parties, then there will be elections. ठीक है ना, ये अभी हमने डिस्कस किया. If there will be political parties, then there will be elections. Number 2, if there will be elections, then there will be elected government. There will be elected government. ठीक है ना, अगर आपकी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, then the elections are taking place, and the elections are taking place, then there will be elected government. If there is elected government, ठीक है, then elected government है, then there will be democracy. ठीक है, ये समराइज करके टॉपिक कर लेते हैं. अगर आपकी कंट्री में इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो आपका कंट्री डेमोक्रेसी. अब आपका कंट्री डेमोक्रेसी कैसे बन रहा है? सबसे पहले आपकी कंट्री में हैंगी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट आ रही है, तो आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी है. ऑल्सो योर कंट्री विल हैव ऑपोजिशन. आपकी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो आपकी कंट्री में ऑपोजिशन पार्टीज भी हैं. क्यों अपोजिशन पार्टी है? बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो इलेक्शन हो रहे हैं तो जीतने वाली पार्टी क्या बना रही है इलेक्टेड गवर्नमेंट बना रही है, जीतने वाली पार्टी. ठीक है, और आपके कंट्री में डेमोक्रेसी है. और साथ साथ अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो आपकी कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं और हारने वाली पार्टी क्या बना रही है? ऑपोजिशन पार्टी बना रही है. अगर तो अब देख लो, चाइना जैसा कंट्री है, वहां पर भी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है सिर्फ एक, दैट इज योर कम्युनिस्ट पार्टी. बट वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी है, तो वही इलेक्शन लड़ रही है, वही जीत रही है. तो जिसका मतलब क्या है? वहां पर डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहां पर सिर्फ कम्युनिज्म है. लेकिन इंडिया जैसे कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे कंट्री, जहां पर एक से ज्यादा पार्टीज है, वहां पर क्या हो रहा है? इलेक्शन भी हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आ रही है, ठीक है, और कंट्री में डेमोक्रेसी भी है, और जो पार्टी हार रही है वो ऑपोजिशन में भी जा रही है. मतलब कि एक पार्टी जीत रही है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट बना रही है, और दूसरी पार्टी हार रही है, वो ऑपोजिशन पार्टी बना रही है. इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टीज आर ए नेसेसिटी इन एनी डेमोक्रेसी. अगर आपकी कंट्री में किसी डेमोक्रेसी है तो आपकी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी का होना भी जरूरी है, और बल्कि सिर्फ एक भी नहीं, एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो बच्चों, नंबर 5. अच्छा, अब हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. देखो, अब हमने बात की कि अगर आपका कंट्री डेमोक्रेसी है तो आपकी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है, एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है. चाहे अमेरिका है जहां पर सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज है. अब अगर 2 पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं तो मतलब एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है, तो अमेरिका इज अ डेमोक्रेसी. इंडिया क्या है? इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, ढेर सारी पार्टीज है, तो इंडिया भी डेमोक्रेसी है. लेकिन यह कहना गलत होगा कि सिर्फ डेमोक्रेसी में ही पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है. अगर आपका कंट्री चाइना की तरह कम्युनिज्म भी है ना, तो वहां पर भी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत जरूर है.
चाइना, देख जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, चाइना हैज कम्युनिस्ट सिस्टम, चाइना हैज कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाइना में कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बट अब ये कहना गलत है कि वहां पर एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, या वहां पर देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये कहना गलत है। भले ही चाइना इज ए कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाइना हैज ए कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इट ऑल्सो हैज one political party, it also has one political party, that is Communist Party of China, CPC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है तो एटलीस्ट वहां पर कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है। अगर कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि एक पार्टी एटलीस्ट है वहां पर। अगर सपोज करो चाइना में एक भी पार्टी ना हो, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी ना होती, तो फिर क्या होता? फिर क्या कम्युनिज्म वहां पर रुकता? कभी भी ना रुकता। फिर तो वहां कोई सेटअप ही नहीं हो सकता था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाहे आपकी कंट्री में कम्युनिज्म है, चाहे आपकी कंट्री में कम्युनिज्म है, चाहे आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी है, कुछ भी है, चाहे आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी है, एनीथिंग यू आर हैविंग, यू मस्ट हैव द पॉलिटिकल पार्टी इन योर कंट्री, एंड दोज पॉलिटिकल पार्टीज और सिंगल पॉलिटिकल पार्टी help to run their country. If you are having one political party, then you have communist form of government or dictatorship, ठीक है? And if you have more than one political party, then you have democracy, just like America, just like India. Is that clear बच्चों? चलो, तो this was the necessity of the political parties. Next, question बच्चों, how many political parties do we have? Please take the question. How many political parties do we have in India? Please write down the question. Okay, so beta, before this topic we have to discuss one more very important topic. Please write down what is meant by the term partisanship. What is meant by the term partisanship? For 1 mark. ठीक है जी? Please underline the answer also on page number 73. On page number 73, right side glossary. देखो बेटा, the policy under which, सबसे आगे ऐसे लिख लो, the policy under which a person is strongly committed to a party or a faction is known as partisanship. ठीक है, ये लिख लो बेटा, the policy under which a person is strongly committed to a party or a faction is known as a partisanship. देखो टर्म हमारा बच्चों पार्टीसैनशिप का मतलब पता क्या होता है? पार्टीसैनशिप का मतलब होता है कि मैं हर हाल में अपनी पार्टी के साथ जुड़ा रहूंगा। आई विल स्टे स्ट्रांगली कमिटेड टू माई पार्टी। मैं अपनी पार्टी के साथ हर समय हर परिस्थिति में जुड़ा रहूंगा। आई विल स्टे स्ट्रांगली कमिटेड टू द पार्टी एंड आई विल नेवर लीव माई पार्टी, आई विल नेवर अपोज माई पार्टी। ऐसी पॉलिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टीसैनशिप के मतलब कि मैं हर हाल में, सपोज मेरी पार्टी में कोई क्राइसिस आ जाता है, मेरी पार्टी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी मैं अपनी पार्टी को छोड़कर भागूंगा नहीं। मैं हर हाल में अपनी पार्टी के साथ जुड़ा रहूंगा। आई विल रिमेन स्ट्रांगली कमिटेड विद माई पार्टी और विद माई फैक्शन मतलब कोई भी ग्रुप, कोई भी संगठन। तो मैं अपनी पार्टी के साथ, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, ठीक है, मैं अपनी पार्टी के साथ या अपनी फैक्शन के साथ हर हाल में स्ट्रांगली जुड़ा रहूंगा, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, चाहे कोई अच्छी स्थिति हो, चाहे कोई बुरी स्थिति हो। आई विल बी स्ट्रांगली कमिटेड टू माई पार्टी, आई विल बी स्ट्रांगली कमिटेड टू माई फैक्शन। दैट पॉलिसी, दैट थिंकिंग इज नोन एज पार्टीसैनशिप। और ये दिस पार्टीसैनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सपोज करो अगर आप ऐसे हो कि जब तक मेरी पार्टी में अच्छी सिचुएशन है तब तक मैं पार्टी के साथ हूँ, जैसे ही पार्टी में कोई प्रॉब्लम हुई मैं पार्टी छोड़ के भाग गया, उससे क्या होगा? पार्टी को तो नुकसान होगा ही होगा, आपको खुद को भी नुकसान होगा, क्योंकि कोई पार्टी आप पर भरोसा नहीं करेगी। तो दैट मीन्स यू मस्ट हैव द फीलिंग ऑफ पार्टीसैनशिप, द पॉलिसी ऑफ पार्टीसैनशिप इन योर हार्ट, इन योर थिंकिंग, so that your party can remain strong.
अगर आप हर हाल में अपनी पार्टी के साथ जुड़े रहोगे, किसी भी स्थिति में जुड़े रहोगे, तो आपकी पार्टी भी स्ट्रांग होगी, आपकी फैक्शन भी स्ट्रांग होगी, आप खुद भी स्ट्रांग होगे। तो दैट्स वाई दिस पॉलिसी ऑफ पार्टीसनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पोलिटिकल पार्टी इन द होल वर्ल्ड कि आई विल रिमेन स्ट्रांगली कमिटेड टू माई पोलिटिकल पार्टी और माई फैक्शन इन एनी गुड और बैड सिचुएशन। दैट इज नोन एज पार्टीसनशिप। इज दैट क्लियर बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। व्हाट इज पार्टीसनशिप? अच्छा, एक और क्वेश्चन लिख लो, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। What are the important components of a political party? What are the important components of a political party? Explain them. What are the important components of a political party? Explain them for 3 marks. Very important question. ठीक है, I am rubbing this now. Next question ये है आपका, ठीक है, for 3 marks question. Important components of political party. Components of political party. ठीक है, what are the important components of political parties? देखो, नंबर 1, प्लीज अंडरलाइन, ये भी बुक में दिया पेज नंबर 73 पर। नंबर 1, द लीडर्स। The most important component of any political party is the leaders of those political party. उस पार्टी के नेता कौन है? जैसे सपोज बीजेपी हैज इट्स लीडर इन द फॉर्म ऑफ मिस्टर अमित शाह, ठीक है, और ऑल्सो मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर राजनाथ सिंह, ऑल दीज आर द लीडर्स ऑफ बीजेपी विच इज अ पोलिटिकल पार्टी. दैट मीन्स द लीडर्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ पोलिटिकल पार्टी. सपोज कांग्रेस हैज द लीडर्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्टर राहुल गांधी, मिसेस सोनिया गांधी, ठीक है, दीज आर द लीडर्स ऑफ Congress, which is again a political party. Mr. Arvind Kejriwal, he is the leader of Aam Aadmi Party. So that means Aam Aadmi Party, which is again a political party, has a leader in the form of Mr. Arvind Kejriwal. So the most important component of any political party is its leaders. Number 2 टिक करो, the active members. ठीक है, ये भी सारा आपकी बुक में दिया होगा पेज नंबर 73 के ऊपर, देख सकते हो लेफ्ट साइड पर. सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपकी पॉलिटिकल पार्टी का बच्चों, द एक्टिव मेंबर्स. व्हाट आर एक्टिव मेंबर्स? दोज मेंबर्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. दोज मेंबर्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, लिख लो, द मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज that take the policies of the party to the common household in the countryside are known as the active members of the political party. These active members are again a very important part of the political party. क्योंकि बच्चों these are those persons जो पार्टी को लोगों के घर तक पहुंचाने का काम करते हैं. क्योंकि देखो ना, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं ये सीधे डायरेक्टली लोगों के सबके घर में नहीं जा सकते, लेकिन जो पार्टी के एक्टिव मेंबर्स होते हैं, जो हर गाँव, हर गली, हर मोहल्ले में होते हैं, वो सभी पोलिटिकल पार्टीज के एक्टिव मेंबर्स लोगों के घर तक पार्टी की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को पहुंचाने काम करते हैं. तो दैट्स व्हाई दीज एक्टिव मेंबर्स मेक द पॉलिटिकल पार्टीज पॉपुलर एंड दीज एक्टिव मेंबर्स जनरेट द पब्लिक ओपिनियन इन द फेवर ऑफ देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी. तो दैट इज व्हाई दीज एक्टिव मेंबर्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी पॉलिटिकल पार्टी. ये एक्टिव मेंबर्स हैं तो पार्टीज काम कर पा रही हैं. अगर ये एक्टिव मेंबर्स काम नहीं करेंगे तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा. अकेले लीडर्स कुछ नहीं कर सकते. इनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. इन एक्टिव मेंबर्स की सपोर्ट के साथ ही आपके जो लीडर्स हैं वो सही तरह पार्टी को चला पा रहे हैं. इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, द एक्टिव मेंबर्स. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट नंबर 3, अंडरलाइन नंबर 3, द फॉलोअर्स. प्लीज अंडरलाइन द फॉलोअर्स.
द फॉलोअर्स। हु आर द फॉलोअर्स? जो उस पार्टी को, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसको वोट देकर जिताने का काम करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? द फॉलोअर्स। सपोज आई एम अ फॉलोअर ऑफ बीजेपी, ठीक है, आई यूज टू गिव माई वोट टू द बीजेपी, तो दैट मीन्स आई एम द फॉलोअर ऑफ दैट पार्टी। सपोज मैं कांग्रेस को वोट देता हूं, आई यूज टू गिव माई वोट टू कांग्रेस, तो दैट मीन्स आई एम द फॉलोअर ऑफ कांग्रेस। तो मतलब हु आर द फॉलोअर्स? द कॉमन पीपल, द कॉमन पीपल who used to cast their vote in the favor of any particular political party, in any particular political party are known as the followers, of that political party, ठीक है जी। तो ये these three are the most important components of any political party. Number one, the leaders, जो उस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, जो उस पार्टी को चलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट नंबर टू, द एक्टिव मेंबर्स, जो उस पार्टी की पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को लोगों के घर घर तक, गली मोहल्ले तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीज आर द एक्टिव मेंबर्स। नेक्स्ट नंबर थ्री, द फॉलोअर्स, जो उस पार्टी को फॉलो करते हैं, उस पार्टी को वोट देकर इलेक्शन में जिताते हैं, वो दीज फॉलोअर्स। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, वेदर इट इज कांग्रेस, whether it is BJP or Aam Aadmi Party or Communist Party, any of the political party. Is that clear? These are the three components of any political parties in any part of the world. Is that clear बच्चों? So this was our today's topic, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमने लिखा था कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे। तो टुडे वी हैड डिस्कस्ड अवर चैप्टर बच्चों, दैट इज योर पॉलिटिकल पार्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज, नेक्स्ट वी डिस्कस्ड व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, देन वी डिस्कस्ड व्हाट आर द फंक्शंस, ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल्सो वी डिस्कस्ड द नेसेसिटी, also we discussed about the role of oppositions, and now we have also discussed about the what is partisanship and what are the components of political party, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए हैं। इन टुमारोज वीडियो, इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अवर हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव, दैट इज फ्रॉम पेज नंबर 75, ठीक है। नेक्स्ट हम वहाँ से डिस्कस करें। सो दिस वॉज अवर टुडेज टॉपिक बच्चों। आई थिंक यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन सेंड मी योर डाउट्स, नो प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर बच्चों? थैंक यू सो मच।